Dear student friends, I am Dr. Godbola Mahendra Tukaram, welcoming you all again in my today's presentation. In the today's presentation, I am going to explaining about the preamble's importance for the judiciary, for the interpretation of the different legal issues or the matters. First upon, what is the preamble and why the preamble was considered as the most important or the integral part of the Indian Constitution. Earlier in 1960, the authorities of Supreme Court, they thought that the preamble is not as much as important like the other articles of the Constitution or the other parts of the Constitution. But the Supreme Court has overruled their statement, the verdicts, and they state that in the Keshavananda Bharti of the Kerala government versus the Keshavananda, and the Supreme Court overruled that the preamble is integral part of the Indian Constitution, and although the Parliament has been empowered to amend the Constitution on a different issues, but the power of the Parliament is not unlimited. The power of the Parliament has been limited by the philosophy of the Indian Constitution's preamble. Although the Supreme Court there also stated that although the Indian Parliament has been empowered to amend on any legal issues, but any amendment or any verdict can't destroy the basic framework of the Constitution that I am going to explaining. So what is preamble? Preamble to the Indian Constitution is based on the objective resolution. ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जब हम पहला जो प्रियम्बल देखते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन का प्रस्ताविक हम देखते हैं, तो उसमें ये निहित है कि प्रियम्बल जो है तो क्यों लाया गया था. तो प्रियम्बल वाज included in the Indian Constitution. It is because of the objective resolution. ये objective resolution क्या था, जो कि 22 जुलाई में, it was in 1946 में जुलाई में उसे accepted किया था by the Constitution Committee. Okay, and what was the objective resolution? ये objective resolution क्या थे? नेहरू जी ने ये objectives हमारे Constitution के जो framing committee थी उनके सामने ये resolutions पेश किए थे. तो उसमें क्या चीजें थी? उसमें ये थी कि हमारा जो इंडिया होगा, it will be the sovereign. कोई शक्ति हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को और हमारे मुल्क को कंट्रोल नहीं करेगी, और the Indian peoples must be free to express, they must be justified, justice होना चाहिए, and economy, social equality must be there, must be the safeguarding for the oppressed community. So such a long list was there as an objective of the Indian Constitution. Objective means those were very specific, and the objective resolution drafted and moved by the Pandit Nehru. तो पंडित नेहरू जी ने ये जो resolution थे, वो जो objective थे, वो objective move किए थे, and it was adopted by the Constituent Assembly. It has been amended. ये जो preamble है हमारा, preamble भी amend किया गया है in 1976. 1976 में हमारा प्रियम्बल जो पार्लियामेंट का सेशन था, वो सेशन के अंदर मतलब जैसे सेशन में हम नहीं कर सके उसे, बिकॉज ड्यूरिंग द इमरजेंसी दैट द आर्टिकल और द अमेंडमेंट ऑफ द 1976 हैज been adopted, where the new words, that is socialist and secular integrity, ये जो तीन शब्द है, सोशलिटी, एक्चुअली दो ही शब्द कहेंगे आप उसे, दो ही मतलब चेंजेस है, एक सोशलिस्ट और
सेक्युलर एंड इंटेग्रिटी, ये दो शब्द अंदर लाए गए हैं। ठीक है, वी द पीपल, व्हाट इज द प्रीएम्बल, एंड प्रीएम्बल रन्स एज ए फॉलोज। क्या है प्रीएम्बल? वी द पीपल ऑफ इंडिया, प्रीएम्बल के अंदर जो सुप्रीम अथॉरिटी है हमारे देश के अंदर, जो निहित जो सुप्रीम अथॉरिटी है, तो वो है वी द पीपल। ये पीपल जो है हमारे आम जनता जो है, तो वो प्रीएम्बल का सोर्स है, कॉन्स्टिट्यूशन का सोर्स कहा गया है। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolves to constitute India into a sovereign, सार्वभौम, socialist, secular, democratic people। डेमोक्रेटिक, हमारे देश के अंदर अभी डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेटिक का मतलब यह है कि वी आर द फ्री पीपल, नो एनी अदर फॉरेन नेशन इज गोइंग टू कंट्रोलिंग टू अस, दैट इज the democratic, and we are going to representing the peoples, okay, that is representative democracy, and it is also a secular, because Indian constitution or the Indian constitution's philosophy is not going to inhibiting, or it is also not going to making too much favor of any community or any religion, but the mechanism of the constitution or as a government is going to protecting to all the religions, their faiths and their various events, their cultural events, okay। जस्टिस, सोशल जस्टिस, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जस्टिस की बात की है, दैट इज सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, उसमें जस्टिस होना चाहिए और सबके लिए न्याय जो है, तो टू इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ, दैट इज ए रूल बाय लॉ, उसने ये डिफाइन किया है। लिबर्टी होनी चाहिए, किस प्रकार की लिबर्टी? देयर मस्ट बी एक्सप्रेशन ऑफ द थॉट्स, देयर मस्ट बी एक्सप्रेशन, बिलीफ एंड वर्शिप। हर एक मतलब रिलीजन के लोगों को अपने खुद के रिलीजन का जो डिफरेंट प्रोसेसेस होते हैं या जो कल्चरल एक्टिविटीज होते हैं वो एक्सप्रेस करने का हमें अथॉरिटी दिया गया है। इक्वालिटी है, इक्वालिटी का मतलब ये है कि हमारा जो स्टेटस है एंड अपॉर्चुनिटी है, जैसे कोई नोटिफिकेशन जब पब्लिश किया जाता है अबाउट एनी अपॉर्चुनिटी, इट हैज टू बी ओपन एंड देयर मस्ट बी ए चांस टू पार्टिसिपेट फॉर दैट इज एनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन एंड सो ऑन। तो ये इक्वालिटी है, स्टेटस की इक्वालिटी है एंड अपॉर्चुनिटी मिलना बहुत जरूरी है खुद के पर्सनल डेवलपमेंट के लिए, पर्सनैलिटी का ग्रोथ करने के लिए। एंड प्रमोट अमंग देम ऑल, दैट इज फ्रैटर्निटी। फ्रैटर्निटी किस प्रकार की है? दैट इज एश्योरिंग द डिग्निटी एंड इंडिविजुअल्स एंड द ड्यूटी ऑफ द इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। ये हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन के असेंबली ने क्या कर दिया है, ये अमेंड मतलब जो प्रियम्बल है, प्रियम्बल ऑन नवंबर 26, 1949 को ये एक्सेप्ट किया है और ये अडॉप्ट कर लिया है कि, एंड इट इज कहा गया है कि वी द पीपल्स आर द सोर्स ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन एंड वी आर गोइंग टू अडॉप्टिंग और इनेक्टिंग दिस कॉन्स्टिट्यूशन। ये कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा प्रियम्बल, ये प्रियम्बल की डेफिनेशन जो है तो अभी मैंने बताई आपको। द नेक्स्ट इज अ जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स ऑफ द प्रियम्बल। उसका जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट यानी जुडिशियल रिव्यू जो किया गया, तो उसमें क्या मतलब जस्टिस, इक्वालिटी, एक्सप्रेशन, अपॉर्चुनिटीज, तो इन सब चीजों का यदि ख्याल नहीं रखा जा रहा है तो उसके बारे में 2 अमेंडमेंट किए गए हैं। और दैट इज द इन बेरुबारी केस जो है, ये बेरुबारी केस इस प्रकार से रिलेटेड है। देखिए, जब हमारा देश मतलब पोस्ट पार्टीशन की इवेंट जब हो चुकी थी, पोस्ट पार्टीशन यानी जब बंटवारा हो चुका था भारत और पाकिस्तान के भीतर, वो जो सर रैडक्लिफ थे, उन्होंने एक बाउंड्री बनाई थी कि ये जो इलाके है तो वो इलाके ईस्ट से लेकर के इधर हमारे इंडिया के हो गए, पाकिस्तान का कौन सा रीजन होता है, दैट इज अ डिमार्केटिंग बाउंड्री बिटवीन द इंडिया एंड पाकिस्तान। वो सर रैडक्लिफ ने बनाई थी और उसमें ये भी दिखाया गया था कि एक बेरुबारी जलपाईगुड़ी में एक मतलब वो टेरिटोरियल रीजन में एक बेरुबारी नाम का एक बेल्ट था, एक रीजन था। तो उसके लिए जो है तो वो एक्चुअली
ये रीजन इंडिया के मतलब पाकिस्तान को देना चाहिए या वो मिस एक्चुअली इट वाज शोन इन द पाकिस्तान बाय दैट रेड क्लिफ बाउंड्री, पर उसके बारे में कुछ डिस्प्यूट होने के बाद नेहरू और नून नाम के जो एक पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे, उन दोनों के अंदर 1958 में एक समझौता हुआ था और दैट समझौता वाज चैलेंज्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट। तो दैट इज द बेरूबारी केस हम उसे कहते हैं। व्हाट इज द बेरूबारी केस? देखिए, द प्रियम्बल जो है, तो प्रियम्बल ये एम्बिग्यूअस और लीगल मैटर में बहुत ही इंपॉर्टेंट और अहम भूमिका बनाता है। प्रियम्बल जो है एक, द बेरूबारी केस ये 1960 से कनेक्टेड है। 1960 में ये बेरूबारी का प्रकरण हुआ था और लगभग 68 दिनों तक ये केस का मतलब रिव्यू हो चुका था। मतलब केस के ऊपर जो सुनवाई हो रही थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो मतलब जुडिशियरी थी वहां से, सुप्रीम कोर्ट से। ओके, इट वाज ए लैंडमार्क सुप्रीम कोर्ट इंडियाज डिसीजन that established now the country can legally cede its territory to the foreign nation। हमारे कोई भी टेरिटोरियल रीजन जो है तो कोई फॉरेन को हम नहीं दे सकते हैं ऐसे ही। तो इसीलिए क्या करना पड़ेगा, जैसे कि नेहरू और नून ये दोनों के अंदर जब एग्रीमेंट हो चुका और नेहरू ने ये तय किया कि चलो अब जो ये बेरूबारी है वो हम आधा आधा बांट के लेते हैं, आप आधा हिस्सा लीजिए और हम इंडियंस आधा हिस्सा ले लेंगे। तो उसके ऊपर जो है तो प्रेसिडेंट साहब ने जो मतलब उस जमाने में आर्टिकल नंबर 43 का जो फर्स्ट क्लॉज है, आर्टिकल नंबर 143, अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल हमारे प्रेसिडेंट जो है तो सुप्रीम कोर्ट की मतलब राय लेते हैं कि उसके ऊपर क्या करना चाहिए। तो ऐसा जब हो चुका तब कोर्ट रूल्ड द पार्लियामेंट कैनॉट सिंपली पास द लॉ टू गिव एनी, पार्लियामेंट को अंदर ये ताकत नहीं है कोई भी अमेंडमेंट करने के पहले ही कोई हमारा टेरिटोरियल रीजन दूसरे फॉरेनर्स को दे, कोई दूसरे कंट्री को दे, ये पावर हमारे पार्लियामेंट को नहीं है। जब ऐसा कहा, ये अकॉर्डिंग टू आर्टिकल नंबर 143(1), देन इट कैनॉट सिंपली पास अ लॉ टू गिव अवे द इंडियन लैंड, हमारी ऐसी ही लैंड किसी को नहीं दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा इट मस्ट बी फॉर्मली अमेंडेड द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर द आर्टिकल नंबर 368, आर्टिकल नंबर 368 के तहत आपको उसे अमेंड करना चाहिए। और ये है तो आर्टिकल नंबर 143 फर्स्ट, इट इज द पावर और द प्रेसिडेंट साहब का ये पावर है कि दे कैन टेक द असिस्टेंस और द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट। नाउ द बैकग्राउंड ऑफ द डिस्प्यूट, एक डिस्प्यूट था जिसके बारे में पहले ही मैंने कहा कि ये रेड क्लिफ बाउंड्री के अंदर जो मतलब बेरूबारी दिखाया गया था, तो मैप में एक्चुअली उधर दिखाया गया था, बट एक्चुअली इट वाज cartographically it was located or it was shown in the Pakistan, but it was existing in India। तो इस प्रकार का ये डिस्प्यूट था। द ओरिजिन फॉलोइंग द 1947 पार्टीशन, 19 मतलब जो बंटवारा हुआ था, भारत पाक का जो निर्माण हुआ था अकॉर्डिंग टू द इंडियन एक्ट जो था 1947 का, तो the following 1947 partition, the boundary between the India and the Pakistan, देखिए यहां से नॉर्थ वेस्टर्न साइड हमारा पंजाब का ये रीजन है, उधर वो नॉर्थ वेस्ट में पाकिस्तान आ गया और यहाँ पे बांग्लादेश जो है, तो ये बाउंड्री जो है तो ये बाउंड्री कलकत्ता से, ठीक है, यहाँ पर जो है ये एक बाउंड्री बनाई बिटवीन द बांग्लादेश एंड द नॉर्थ वेस्टर्न पाकिस्तान एंड इंडिया। तो इस प्रकार बाउंड्री चली गई थी। ओके, नाउ इट इज बांग्लादेश जो है तो अभी ये मतलब अलग देश है एंड वाज ए ड्रॉन बेस्ड ऑन द रेड क्लिफ लाइन। ये लाइन को क्या कहते हैं? ये लाइन को कहा जाता है रेड क्लिफ। ये रेड क्लिफ ने लाइन बनाई थी। द बेरूबारी यूनियन रीजन्स इन वेस्ट बंगाल, बंगाल जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट, ये बेरूबारी रीजन था वो जलपाईगुड़ी के रीजन में था वेस्ट बंगाल में, एंड इट वाज इनिशियली प्लेस्ड इन इंडिया, हमारे इंडिया को ये उससे पहले दिखाया गया था, बट इट एज ए सब्जेक्ट ऑफ द टेरिटोरियल डिस्प्यूट व्हेन द पाकिस्तान क्लेम्ड इट बिलोंग्स टू देम। पाक के टेरिटोरी ने या पाक के अथॉरिटीज ने ये कहा
कि जैसे ही ये बांग्लादेश में पहले था, अभी वो इंडिया में दिखाया गया है, पर वो हमारे लिए मतलब सर रैडक्लिफ ने ये हमारे लिए दे दिया है, ये बाउंड्री बना के द एग्रीमेंट हो गया। फिर बाद में मतलब जो हमारे प्राइम मिनिस्टर था वो साहब थे नेहरू, और पाक के मिनिस्टर जो थे प्राइम मिनिस्टर वो फिरोज खान नून एंड हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे पंडित नेहरू, ये दोनों के अंदर 1958 में एक समझौता हुआ, एंड दिस इज नोन एज एग्रीमेंट, एंड दैट वाज साइंड बाय नेहरू नून एग्रीमेंट। ये 1958 का जो एग्रीमेंट है, ये 1958 वाला जो एग्रीमेंट है उसे नेहरू नून एग्रीमेंट कहा जाता है। तो ये एग्रीमेंट को चैलेंज किया गया, विच वाज एग्रीड। उसमें क्या हुआ था, विच वाज एग्रीड और डिवाइड द बाउंड्री ऑफ द बेरूबारी यूनियन इक्वली बिटवीन द टू कंट्रीज। उन्होंने ये कहा कि हम दोनों आधा आधा ले लेंगे ये टेरिटोरियल रीजन, तो ऐसा उसमें हो चुका था। बट व्हाट हैपेंस की गोल एंड क्वेश्चंस उसके ऊपर मतलब आ गए अकॉर्डिंग टू आर्टिकल नंबर 43 एंड अदर सुप्रीम अथॉरिटीज ऑफ द जुडिशियरी। When the agreement was set to implemented, जब उसका इम्प्लीमेंट होना स्टार्ट हुआ था, there was a massive political and the legal debates arose। बहुत ही बढ़िया मतलब ज्यादा मात्रा में पॉलिटिकल राजनीतिक एवं जो लीगल मैटर्स उसे कनेक्टेड थे, उससे बहुत ही सारे डिबेट्स होना स्टार्ट हो चुके थे। तो फिर क्या हुआ, प्रेसिडेंट साहब ने क्या किया, द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया रेफर्ड द मैटर टू द सुप्रीम कोर्ट फॉर द एडवाइजरी ओपिनियन। हमारे प्रेसिडेंट जो है वो प्रेसिडेंट के जो पावर है, तो उनके पावर के अंदर ये आर्टिकल नंबर 43(1) जो है वो भी निहित है कि वे कोई डिस्प्यूट में या कोई एम्बिग्यूअस सिचुएशन में सुप्रीम कोर्ट की वो सहायता ले सकते हैं। तो उसमें एक आर्टिकल है दैट इज 143(1) द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है ये। द कोर्ट वाज आस्क्ड, कोर्ट को जब पूछा गया प्रेसिडेंट साहब ने, वो ऐसा हमारे प्राइम मिनिस्टर ने नून के साथ, प्राइम मिनिस्टर ऑफ द पाकिस्तान नून, जिनके साथ ये 1958 में अभी जो समझौता कर रहे हैं, क्या ये ठीक है, क्या ऐसा करना चाहिए? तो सुप्रीम कोर्ट ने 2 सवाल पूछे। पहला सवाल ये था क्या नेहरू और नून ये दोनों के बीच जो एग्रीमेंट हो गया है, तो उसके लिए कोई कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई सुधार ला लिया है? अकॉर्डिंग टू आर्टिकल नंबर 368 जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जो कि अमेंडमेंट की बात करता है, तो क्या नेहरू और नून के बीच जब ये समझौता, ये एग्रीमेंट हो चुका है, तो क्या उसके पहले उन्होंने संशोधन में मतलब कोई संशोधन कुछ लाया है हमारे संविधान के अंदर? ये पहला क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट ने पूछा। तो कोई भी संशोधन अगर हो रहा है तो उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट को इसका इंफॉर्मेशन होता ही है, क्योंकि those are the guardians of the constitution, and if the law is violating the basic framework of the constitution, and at that time any law can be struck down of the judiciary के अंदर ये पावर है, वो कोई भी लॉ, वो कोई भी अमेंडिंग जो न्यू लॉ है, जो न्यू रूल है जो आ रहा है, तो वो यदि फंडामेंटल राइट्स और कॉन्स्टिट्यूशन का जो फ्रेमवर्क है उसे अगर वो कहीं ना कहीं तो नुकसान पहुंचा रहा है, तो दैट काइंड ऑफ द लॉ में बी स्ट्राइक डाउन, उसकी ताकत जुडिशियरी के अंदर है। दूसरा क्वेश्चन ये भी पूछा गया कि ये जो असर्टनमेंट है, ओके, ये जो बाउंड्री से कनेक्टेड है, तो ये हमारी जो टेरिटोरियल बाउंड्री है, ये एक्चुअल सेशन, ओके, गिविंग अवे जो दिया गया है, क्या उसके बारे में कोई डिस्कशन हो चुका है? वाज द एग्रीमेंट मियर असर्टनमेंट ऑफ द एग्जिस्टिंग बाउंड्री और एन एक्चुअल सेशंस गिविंग अवे ऑफ द इंडियन टेरिटोरी? क्या आप ऐसे ही इंडियन टेरिटोरी का कोई भी हिस्सा एग्रीमेंट करके किसी को भी दे सकते हो क्या? या
आप कोई भी मतलब कल फंडामेंटल राइट्स का भी वायलेशन हो जाएगा ऐसे ही एग्रीमेंट होने के बाद, तो क्या ये पॉसिबल है? तो ऐसे दो सवाल पूछने के बाद जो है तो 7 जज वो का एक मतलब पीठ बनाया गया, एंड दैट 7 जजेस द बेंच रूल्ड फेवर ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल। तो उन्होंने ये कहा कि आप देखिए आर्टिकल नंबर 368 का तो वायलेशन करा ही है, अपने अपने मतलब उनके साथ एग्रीमेंट किया है, कोई संशोधन भी नहीं किया है। तो द सेशन ऑफ द टेरिटोरी का ये जो सेशन वहां पे बैठा, तो सुप्रीम कोर्ट के 7 अथॉरिटीज ने ये कहा कि कोर्ट डिक्लेयर्ड दैट, हम ये डिक्लेयर कर रहे हैं कि एग्रीमेंट वाज नॉट जस्ट अबाउट ए ड्राइंग अ बाउंड्री, and it was an active transfer cession of an Indian territory to Pakistan। ये कोई भी अगर ऐसा बाउंड्री बना दिया तो ये बाउंड्री के उधर अपनी ही सत्ता होगी और वो बाउंड्री के उधर हमारी सत्ता होगी, तो ऐसा नहीं चलेगा। ओके, तो इसलिए हमें संशोधन लाना पड़ेगा। आर्टिकल नंबर 3 वर्सेस आर्टिकल नंबर 368, क्या गवर्नमेंट ऐसा कह सकती है क्या कि अकॉर्डिंग टू आर्टिकल नंबर 3 जो है हमारे संविधान के अंदर, ये आर्टिकल नंबर 3 वर्सेस आर्टिकल नंबर 630 टू 368 ये जो आर्टिकल है, तो क्या उसके बारे में डिस्कशन हुआ था? या अगर कोई भी स्टेट की बाउंड्री चेंज करने का, रीनेम करने का उसको अधिकार यदि है गवर्नमेंट को, तो क्या यूनियन गवर्नमेंट आर्ग्यूड दैट द पार्लियामेंट कुड एक्सक्यूट दिस अंडर द आर्टिकल नंबर 3 विच अलाउज द पार्लियामेंट टू अल्टर द बाउंड्रीज ऑफ द स्टेट। यदि पार्लियामेंट को एम्पावर किया गया है कि आप देश के अंदर की बाउंड्री अल्टर कर सकते हो, पर उसका मतलब ये नहीं है द कोर्ट डिसएग्रीड, दैट इज स्टेटिंग आर्टिकल नंबर 3 डज नॉट ग्रांट द पावर टू गिव द इंडियन टेरिटोरी टू द फॉरेन स्टेट। आपको हमारे देश के भीतर के कोई बाउंड्रीज अल्टर करने का, या कोई फॉरेन मतलब कोई युद्ध के दौरान किसी का मतलब एक्सपांशन हो रहा है अगर हमारा बाउंड्री, तो इसका आपको अधिकार है, पर उसका मतलब ये नहीं कि हमारी बाउंड्री, हमारी लैंड, हमारी टेरिटोरी आप किसी दूसरे कंट्रीज को दे दे। देन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रिक्वायर्ड, कॉन्स्टिट्यूशन का जो अमेंडमेंट होना चाहिए वो इंपॉर्टेंट है। बिकॉज ऑफ दिस ट्रांसफर्स वुड श्रिंक द टेरिटोरी ऑफ द इंडिया। अगर इस प्रकार का पावर पार्लियामेंट को दे दिया गया तो एक दिन ऐसा आएगा कि हमारा जो टेरिटोरियल रीजन है बहुत ही श्रिंक हो जाएगा, छोटा बन जाएगा। ओके, अगर ऐसे हम छोटे छोटे हमारी जो बाउंड्रीज है, या छोटे छोटे हमारे विलेजेस है, या कोई बड़े मतलब हिस्से हमारे देश के अलोंग दी बॉर्डर्स, तो इस प्रकार से हमारा देश छोटा बन जाएगा। द आर्टिकल 1 ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नीडेड टू बी अमेंडेड। आर्टिकल नंबर जो 1 है वो भी अमेंड करना पड़ेगा, एंड रिक्वायर्स द पार्लियामेंट टू यूज द स्पेशल पावर अंडर द आर्टिकल नंबर 360। तो पार्लियामेंट को स्पेशल पावर यूज करके प्रेसिडेंट साहब को इन्फॉर्म करके ये आपको सब करना पड़ेगा। तो ये था, एक अपोज किया गया सुप्रीम कोर्ट द्वारा बेरुबारी को, एग्रीमेंट को बिटवीन द Prime Minister of India, Nehru, and the Firoz Shah Noon of Prime Minister of the Pakistan. Status of the preamble, highly debated ruling. Status जो है preamble का, the court also stated that the preamble is not a part of the constitution. पहले सुप्रीम कोर्ट ने मतलब ये जो 1960 में जो ये बेंचेस ने जो मतलब फाइनल वर्डिक्ट दिया कि आपको ये अधिकार नहीं है, तो उसको हम स्ट्राइक डाउन करते हैं। बट कोर्ट ने वहां उस टाइम 1960 में उन्होंने क्या कहा था कि ये जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रियम्बल है इज नॉट ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीम कोर्ट ने 1960 में ऐसा कहा था, बट जब केशवानंदा भारती की जो बात आ गई थी, केशवानंदा, तो उसमें उन्होंने ये कहा कि प्रियम्बल इज ए इंटीग्रल पार्ट ऑफ, इंटीग्रल का मतलब यह है कि एक अविभाज्य अंग है प्रियम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। तो पहले जो स्टेटमेंट था, पहला जो एक वर्डिक्ट था, उनका जो जजमेंट था, तो उसको उन्होंने क्या किया, पलट दिया, और कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल को आप एक कॉन्स्टिट्यूशन का ही भाग आपको समझना पड़ेगा। और यदि कॉन्स्टिट्यूशन के
यदि प्रियम्बल के अंदर, और प्रियम्बल में भी आप चेंज करते हो, सुधार कर सकते हो, या कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आप चेंज कर सकते हो, पर उसका एक फ्रेमवर्क होगा। ये फ्रेमवर्क क्या होगा, उसमें जुडिशियरी की सुप्रीमेसी जो है तो वो रहनी चाहिए, फंडामेंटल राइट्स का वायोलेशन नहीं होना चाहिए, और जो इंडियन बाउंड्रीज है, मतलब आर्टिकल नंबर 60 का जो है तो वो भी उसका थिंकिंग होना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे मतलब पैरामीटर लगाए गए वो केशवानंद भारती के बारे में, और पार्लियामेंट के अमेंडिंग पावर को एक लिमिट लाई गई, उसको एक फेंसिंग किया गया कि हाँ आप पार्लियामेंट हो तो आप मतलब लॉ बना सकते हो, बट आप कॉन्स्टिट्यूशन से बड़े नहीं हो, तो कॉन्स्टिट्यूशन से बढ़कर कोई लॉ नहीं लाया जा सकता, उसका जो फ्रेमवर्क है वो डिस्टर्ब या डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। ऐसा केशवानंद भारती के बारे में ये किया गया, और एक ओवर रूलिंग की, एंड इट रिजर्व ओनली द गाइडिंग प्रिंसिपल्स टू द माइंड्स ऑफ द फ्रेमर्स व्हेन द इंटरप्रेटिंग एम्बिग्युअस क्लॉजेस। कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल के बारे में 1960 में जुडिशियरी की जो राय थी, उनकी राय ये थी कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल है ये कोई कॉन्स्टिट्यूशन का भाग नहीं है, पर जो संविधान निर्माता थे उनके जो मतलब उनके माइंड्स जो थे या उनकी जो आकांक्षाएं थी, वो आकांक्षाएं हम ध्यान में रखते हुए जब जब हम कंफ्यूजन की स्थिति में हो तब हम ये प्रियम्बल का हम इस्तेमाल कर सकते हैं टू शो और टू सी द ट्रू नॉर्थ। इसके लिए हम ऐसा कर सकते हैं, ऐसा कहा गया था। ये कॉन्स्टिट्यूशन का जो सोर्स है, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन की जो सुप्रीम अथॉरिटी है, दैट इज वी द पीपल ऑफ इंडिया। मैंने पहले ही कहा था, हैविंग सॉलमली रिजॉल्व्ड एंड कॉन्स्टिट्यूएंट इंडिया इनटू द सॉवरियन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड सिक्योर ऑल इट्स सिटीजन्स जस्टिस सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल राइट्स। ये कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रियम्बल है उसके कुछ ऑब्जेक्टिव है, मतलब उसका हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है या हमारा जो स्टेट है, ये स्टेट का कैरेक्टर कैसा है, तो ये डेमोक्रेटिक है, ये सोशलिस्टिक है, ये रिपब्लिक है, और ये जस्टिस लिबर्टी और एक्सप्रेशन, ये सब चीजों का एक्सप्रेशन ये जो है तो इट इज ए फेस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन का ये फेस है, कॉन्स्टिट्यूशन की ये आकांक्षा है, एश्योरेंस ये पार्लियामेंट को मतलब हमारे लोगों को ये प्रियम्बल द्वारा दिया गया है। तो इट वाज ए केस ऑफ द बेरुबारी। नाउ द लास्ट पोर्शन ऑफ इट इज एसोसिएटेड विद द प्रियम्बल ये है, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अब ये केशवानंद भारती के बारे में कहा गया है कि ये केशवानंद भारती कौन है। एक वो स्वामी थे, स्वामी केशवानंद भारती। एडनियर नाम का उनका मठ था, और एक मतलब एक मंक थे, हिंदू मंक कहिए या कोई और रिलीजियस, जैसे कि एडनियर मठ था। इट इज कासरगोड जो केरल में है, ये कासरगोड में उनका एक मठ था। वो भूमि सुधार कानून के कारण मठ की संपत्तियों पर प्रभाव पड़ा। वो संपत्ति जो है मठ की तो स्टेट गवर्नमेंट ने अपने कब्जे में ले ली, तो जिसे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। कोई भी पर्सन जो है तो आर्टिकल नंबर 26 के तहत ही कैन अप्रोच टू द इंडियन दैट इज जो कोई मतलब धार्मिक प्रबंधन की स्वतंत्रता का जो हवाला ले लिया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो सुप्रीम मतलब जो प्रिंसिपल ये फंडामेंटल राइट्स है, तो उसके तहत वो अप्रोच कर सकते हैं। एंड व्हाट हैपन्स, तो जब ये सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच होने लगे तो इस मामले में की जो पृष्ठभूमि थी, तो केरल के 1970 के भूमि सुधार कानून लागू किया गया था वैसे ही, और ये सुधार का जो कानून लाया गया था तो उसके लिए मठ का जो क्षेत्र था उसके ऊपर कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम हो गया था, जिसका असर एडनीर मठ जो कासरगोड केरल में था उसकी संपत्ति पर पड़ा। तो फिर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया। मठ के प्रमुख स्वामी जो केशवानंद भारती थे, उन्होंने इस कानून को सुप्रीम कोर्ट को चुनौती दे दी। और क्या हुआ बाद में, एक इन्होंने अनुच्छेद 26 धार्मिक मामलों के बारे में वहां पर अप्रोच किया गया। मूल मामला क्या था कि यह मामला संसद और राज्य की शक्तियां बनाम संविधान और मौलिक अधिकार की रक्षा से जुड़ा था। संविधान जो है ये हमें मौलिक अधिकार देता है, और मौलिक अधिकार में संपत्ति भी शामिल है।
तो बाकी जो मठ था, मठ का टेरिटोरी था, तो ये टेरिटोरी के ऊपर स्टेट गवर्नमेंट ने भूमि सुधार के कानून के तहत उनको जो है तो उनका लैंड उन्होंने ले लिया था। ओके, इस फैसले की जो महत्व है, इस फैसले का महत्व यह है कि फैसले ने भारत के लोकतांत्रिक स्वरूप और संविधान की आत्मा को सुरक्षित रखा। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो सोल है, दैट इज आर्टिकल नंबर 32, ये 32 से जो कुछ आउटकम्स आ गए हैं तो उसे कहते हैं संसद को मतलब असीमित शक्तियां, एब्सोल्यूट पावर हासिल करने और संविधान को मनमाने ढंग से बदलाने से रोक दिया गया था। मतलब जो एब्सोल्यूट पावर कहा गया है, संसद का जो पावर है तो एब्सोल्यूट है, तो ये एब्सोल्यूट पावर नहीं है। यदि फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन करे, यदि कोई पर्सनल प्रॉपर्टी के अंदर अप्रोच करे, मतलब इनक्रोच करे, तो ये नहीं चलेगा। देयरफॉर 7 वर्सेस 6, मतलब 7 लोगों के, मतलब 13 लोगों के बेंच में से 7 लोगों ने जो है तो बहुमत से फैसला दिया गया, जिसे मूल ढांचा सिद्धांत। मूल ढांचा सिद्धांत का अर्थ होता है जो बेसिक फ्रेमवर्क है। ये बेसिक फ्रेमवर्क जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, तो ये बेसिक फ्रेमवर्क के बारे में पहले कुछ हमें इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है हिस्टोरिकल, पर ये 1973 के बाद बेसिक फ्रेमवर्क आ गया और उससे और भी कॉन्स्टिट्यूशन का जो ढांचा है एक मजबूत किया गया, उसे एक सेफगार्ड मिला बाय द सुप्रीम कोर्ट्स अथॉरिटीज, बाय द मेजॉरिटी। फैसले का मुख्य बिंदु क्या था कि संसद को सर्वोपरि नहीं है, मैं संसद सर्वोपरि नहीं। 1960 में भी जो बेरूबारी की बात की मैंने पहली, वो बेरूबारी के प्रकरण में भी संसद एक कॉन्स्टिट्यूशन से सुप्रीम नहीं है, ऐसा भी कहा गया था आर्टिकल नंबर 368 का, जैसे भी आपको पावर है अमेंड करने का। पर सुप्रीम कोर्ट के अथॉरिटी ने आर्टिकल नंबर 143 फर्स्ट के क्लॉज से ये कहा कि हमें उसके बारे में मतलब चर्चा करनी चाहिए, ये प्रकरण सुप्रीम कोर्ट में लाइए, ऐसा प्रेसिडेंट साहब को बोलने के बाद उसके ऊपर डिस्कशन हुआ। और मूल ढांचा जो है, बेसिक फ्रेमवर्क, मूल ढांचा क्या है, तो सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि संविधान का मतलब जो चरित्र है वो धर्मनिरपेक्षता है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, दैट इज सेक्युलरिटी, और सेक्युलर नेशन है हमारा। मतलब कोई जैसे स्टेट का कोई धर्म नहीं है हमारे, कुछ स्टेट से ये दुनिया के अंदर, जैसे कि वहां पर क्रिश्चियनिटी है या कोई उनका एक, या मुस्लिम डोमिनेटेड कंट्रीज है वहां का इस्लाम एक स्टेट का रिलीजन है, ऐसा हमारा कोई रिलीजन नहीं है। दैट इज धर्मनिरपेक्षता है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है। वहां पर द रूल ऑफ लॉ, रूल बाय लॉ इज वेरी इंपॉर्टेंट, फॉलोड बाय न्यायपालिका जो है हमारी, जो जुडिशियरी है, ये जुडिशियरी का इंडिपेंडेंस होना, हटके रहना गवर्नमेंट से या कायदे कानून बनाने वालों से हटके रहना, तो ये एक हमारा मतलब स्वतंत्र रहना या एक बेसिक फ्रेमवर्क के अंदर आता है। संसद की सीमित शक्तियां हैं, संसद संविधान के अनुच्छेद से संशोधन करने को कानून तो बना सकती है, लेकिन ऐसा कोई भी संशोधन संविधान की मूल भावना को नष्ट नहीं कर सकता। यदि केशवानंद भारती का जो मठ था, वहां जो भी प्रॉपर्टी उनकी थी, तो वो प्रॉपर्टी उनकी थी या उनके कम्युनिटी की थी, तो वो फंडामेंटल राइट्स के तहत आप जो है तो उसके अंदर इनक्रोच नहीं कर सकते हो। जैसे ही संविधान ने अकॉर्डिंग टू आर्टिकल नंबर 360 के तहत पार्लियामेंट को इंपावर किया है, आपको शक्तियां दी है कि ठीक है आप अमेंडमेंट करो, पर संविधान से बड़ा संसद नहीं है, ऐसा कहा गया है। संविधान की जो भावना थी, ये कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स की जो भावना थी, तो उसको आप चुनौतियां नहीं दे सकते हो, ऐसा ये केशवानंद भारती में कहा गया। तो संविधान के मूल ढांचे के तत्व यहाँ पर दिए गए 10 जो उसके मूल तत्व है, यानी फंडामेंटल और द बेसिक फ्रेमवर्क हम कहते हैं उसे। संविधान की सर्वोच्चता है, द कॉन्स्टिट्यूशन इज ए सुप्रीम, कॉन्स्टिट्यूशन इज ए सुप्रीम। संविधान मतलब विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के बीच शक्तियों का बंटवारा होना चाहिए, वो बंटवारा आपको हमेशा करना पड़ेगा। कोई भी आप संशोधन कीजिए, गणराज्यात्मक जो है तो डेमोक्रेटिक जो लोकतांत्रिक स्वरूप है वो नष्ट करके आप मोनार्ची नहीं ला सकते हो।
मोनार्ची का मतलब ये होता है कि कोई भी एक हुक्मरान आप नहीं बना सकते हो संविधान में संशोधन करके। संविधान धर्मनिरपेक्ष तो होना चाहिए, सेक्युलर होना चाहिए। यहाँ पर इंटीग्रिटी की जब बात है तो वो भी इंपॉर्टेंट है। इट इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ दी, जैसे राष्ट्र की एकता का भी एक संसदीय प्रणाली जो है, तो संसद का तो महत्व है, जैसे कि लोकसभा राज्यसभा ये बरकरार रहे। व्यक्ति की स्वतंत्रता की और उसकी जो गरिमा है, फंडामेंटल राइट्स है, तो वो भी आप उसके अंदर मॉडिफिकेशन या उसको आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हो। मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों के बीच सिहार्द और संतुलन रहना चाहिए। मौलिक अधिकार जो है, ये मौलिक अधिकार और जो नीति निर्देशक मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक, जैसे कि डीपीएसपी कहते हैं मुझे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट एंड पॉलिसी, उनके बीच एक सिहार्द, उनके बीच एक मतलब बैलेंस बने रहे और न्याय तक प्रभावकारी पहुंचे, मतलब न्यायपालिका जो उसके ऊपर प्रभाव न डाले, उनको भी मतलब इंडिपेंडेंट रखे। एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना का मतलब जाना जाता है। तो ये आर्टिकल जो है मतलब संविधान से कनेक्टेड, मतलब ये आर्टिकल जो बेरुबारी के बाद ये जो केशवानंद की केस है, ये बहुत ही दिन तक उसकी सुनवाई चली थी। 68 दिन में उन्होंने ये सब चीजों का एक बहुत ही बढ़िया आउटपुट दे दिया ये केस का। तो ये है बेंच के अंदर ऐसे 13 जजेस है और ये जजों ने उनको, केशवानंद भारती को और उनके मठ को जो है तो एक मतलब रिस्टोर करने के लिए उनको ऐसा आदेश दे दिया कि आपकी जो शक्तियां है वो निहित है, मतलब लिमिटेड है। ओके, तो इस प्रकार हमारा जो आज का लेक्चर था, इट वाज अबाउट द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स इंपॉर्टेंस, इट्स सिग्निफिकेंस। वो सिग्निफिकेंस जब जब गवर्नमेंट और जब जब जुडिशियरी एक कंफ्यूजन में हो, तो ये कंफ्यूजन किस प्रकार दूर किया जा सकता है, तो ये प्रीएम्बल के द्वारा। प्रीएम्बल जो है, तो ये प्रीएम्बल जो है तो कॉन्स्टिट्यूशन का एक इंटीग्रल पार्ट है, इंटीग्रल पार्ट है। और ये इंटीग्रल पार्ट जो है, ये मतलब इट इज, वी कैन नॉट एक्सक्लूड प्रीएम्बल। और जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट जो है तो पार्लियामेंट के जो पावर है वो मतलब जैसे एक लिमिटेड है, अनलिमिटेड पावर पार्लियामेंट को नहीं है। बेसिक फ्रेमवर्क जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो बेसिक फ्रेमवर्क के अंदर जो 10 पॉइंट अभी मैंने बताए, तो ये 10 जो संसद के, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो अंग है, हमारे जो लोकतांत्रिक व्यवस्था के जो 10 अलग अलग जो हिस्से, उसमें द सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन है हमेशा सुप्रीम रहेगा। दूसरी बात, जुडिशियरी इंडिपेंडेंट रहेगी और बाकी जो मौलिक अधिकार है, ये मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं किया जाएगा, उसको डिस्ट्रॉय नहीं किया जाएगा। तो इस प्रकार है हमारे प्रीएम्बल का सिग्निफिकेंस और इंपॉर्टेंस। थैंक यू।